سیلاب کی وجہ سے جانی نقصان میں ہولناک اضافہ ہوا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 57 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ NDMA کی تازہ رپورٹ کے مطابق سندھ میں 38، خیبر پختونخوا میں 17 جبکہ کشمیر اور بلوچستان میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ سیلاب کی وجہ سے مختلف واقعات میں گزشتہ روز اور جمعرات کو 19 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بیراج سے 5,43,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ پانی میں اضافے کی صورت میں کچے کے علاقوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ مزید معلومات حیدرآباد سے ہمارے نمائندے ناصر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ بتائیے گا ناصر۔ جی، کوٹری بیراج پر اس وقت جو ہے اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کوٹری بیراج پر، اور یہاں جو ہے وہ 5,43,000 کیوسک جو ہے وہ پانی گزر رہا ہے۔ اس سے تقریباً 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زائد کیوسک پانی میں اضافہ ہوا ہے، اور بتدریج پانی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری علاقوں میں خوف راز پھیلا ہوا ہے، خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر جو ہے یہ دریا کے ساتھ آباد ہیں اور دریا کے پیٹ میں جو لوگ آباد ہیں ان کے گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے۔ تو کوٹری بیراج کی جو ڈسچارج کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 9.25 لاکھ ہے، لیکن جو ہے اس سے قبل بھی 2010 کے سیلاب کے اندر جو ہے وہ 8.5 لاکھ پانی یہاں سے گزرا تھا۔ اب چونکہ یہاں پر جو ہے وہ بندوں کی باقاعدہ پچنگ نہیں ہو رہی اور یہاں پر کوئی جو ہے حفاظتی انتظامات نہیں ہے، اس لیے لوگوں میں زیادہ خوف ہراس ہے۔ جی، سیم نالے میں مختلف مقامات پر شگاف پڑنے سے جیکب آباد کے قریبی دیہات میں پانی داخل ہو گیا ہے، لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ رپورٹ کے ساتھ اسد علی مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ جی بالکل، بات کی جائے سیلاب اور بارشوں کی تباہ کاریوں کی تو اس وقت میں موجود ہوں جیکب آباد کی یونین کونسل بکاپور عمرانی لاڑوں کے مقام پر۔ سندھ اور بلوچستان کے سنگم سے گزرنے والے سیم نالوں کو مختلف مقامات پر شگاف پڑنے کے باعث پانی کا بہاؤ ہے وہ جیکب آباد کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جیکب آباد کے قریبی جو دیہات ہیں ان میں پانی داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں وہ نقل مکانی کر کے سڑکوں پر مقیم ہو چکے ہیں۔ ہماری جب یہاں کے مقامی زمیندار سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ تینوں یونین کونسل میں جو دیہات ہیں تقریباً 150 سے زائد دیہات ہیں وہ پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری ضلع انتظامیہ سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ شہر کی طرف بڑھتے ہوئے پانی کو روکنے کے لیے سندھ اور بلوچستان سے نکلنے والی جو قومی شاہراہ ہے جس کو کوئٹہ روڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر مختلف مقامات پر بند باندھنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں ہونے والا داخل پانی روکا جا سکے۔ جی، کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مغل زئی کے مقام پر سیلاب متاثرین کا احتجاج جاری ہے۔ متاثرین کی جانب سے کہا گیا ہے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ خیمے، راشن اور پینے کے پانی سمیت کسی بھی قسم کی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ اسی پر ہم بات کریں گے، مقبول احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مقبول، بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے متاثرین کی جانب سے؟ جی، ڈیرہ غازی خان میں سیلاب متاثرین کو بر وقت 25,000 کی جو وزیر اعظم کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی ترسیل کے لیے، یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے ڈسٹرکٹ آفس میں موجود ہوں، جہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام محمد علی محسن صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو فلڈ ریلیف ایڈ دی جا رہی ہے لوگوں کو، یہ کچھ 54,800 سم تھنگ ہے، اور اس میں سے ہم کوئی 33,000 لوگوں کو یہ ایڈ دے چکے ہیں، اور بقایا لوگوں کو ہم موبلائز بھی کر رہے ہیں تھرو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ۔ اور اس کی کٹوتی اور شفافیت کے لیے ہماری فل ٹائم مانیٹرنگ ٹیمز ہیں، مور دین 100 لوگ اس وقت اویلیبل ہیں کیمپ سائٹس پہ، اور وہ پھر ہر بندہ اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، اور جہاں بھی تھوڑی سی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم فوراً 2 طرح سے ایکشن لیتے ہیں، تو FIRs دیتے ہیں۔ جی، آپ لوگوں نے سنا، ان کا کہنا یہ تھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو 25,000 روپے فوری طور پہ سیلاب زدگان کو دینے تھے، ان کے لیے مختلف جگہوں پہ جو سیلاب کے علاقے ہیں 12 کیمپ لگا دیے گئے ہیں، اور یہاں پر 55,000 جو لوگ تھے ان کو رقوم دی جانی تھی، جس میں سے تقریباً 60% 33 سے 34,000 روپے جو رقوم ہے سیلاب متاثرین میں منتقل کی جا چکی ہیں۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مغل زئی کے مقام پر سیلاب متاثرین کا احتجاج، متاثرین کی جانب سے کہا گیا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ خیمے بھی نہیں ہیں، راشن بھی نہیں ہے، اور پینے کے پانی سمیت کسی قسم کی امداد فراہم نہیں کی جا رہی۔
इस बारे में आपको मज़ीद भी डिटेल्स देंगे। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर मुगलजई के मकाम पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज जारी है और मुतासरीन की जानिब से कहा गया है कि उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। उनके पास ना खैमे हैं और ना ही खाने पीने की अशिया मौजूद हैं। राशन और पीने के पानी समेत किसी भी किस्म की इमदाद फराहम नहीं की गई। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर मुगलजई के मकाम पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज जारी है। अभी तक की क्या सूरत हाल है, मकबूल अहमद से हम जानेंगे। बताइएगा मकबूल अहमद। मुगलजई तलाश के मकाम पर मुतासरीन का मुजाहिरीन ने कोयटा कराची कौमी शहर ब्लॉक कर दिया। पूछते रोज सैलाबी रेले से मुगलजई और गर्दनवा में होने वाले नुकसान पर मुतासरीन ने सुबह 9 बजे कोयटा कराची कौमी शहर मुगलजई के मकाम पर ब्लॉक किया हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि जो भी सैलाबी रेले हमारे घरों को बहा कर ले गए, हम रात खुले आसमान तले बेयार मददगार रहे हैं। इंतजामिया की नाइली की वजह से वो अगर बंदों को बर वक्त महफूज करते हैं, ये सैलाबी रेले हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर हमारे साथ कोई रास्ते नहीं तक नहीं किया गया। हमें राशन टेंट पानी तक नहीं मिला है। हमारे अब घर बार खत्म हो गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका मकबूल अहमद। किला अब्दुल्ला में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद ना मिलने के बावजूद अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी है। मुतासरीन ने कहा है माली इमदाद के लिए अभी तक सर्वे भी शुरू नहीं किया गया, इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मज़ीद हम जानेंगे मंसूर अहमद अचकज़ई से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला अब्दुल्ला के उन सैलाब से मुतासरा इलाकों पर जहाँ पर सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसानात पहुँचाए थे। मुतासरीन का कहना है कि 2 हफ्ते हो गए, अभी तक हुकूमत की जानिब से हमें कोई इमदाद फराहम नहीं किया गया है। हमें सिर्फ चंद खेमे दिए गए, जबकि यहाँ पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है। मुतासरीन के मुताबिक अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई सर्वे टीम यहाँ पर नहीं भेजी गई है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर यहाँ पर अपनी सर्वे टीमें भेज देता कि हमारे नुकसानात की सर्वे होकर हमारे लिए पूरी तौर पर इमदाद का ऐलान किया जाए। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला इजलास हुआ। एहसन इकबाल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि महदूद वसाइल के बावजूद मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। नागहानी आफत के लिए इदारे मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। आलमी इदारों को फौरी आगे आना होगा। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा मुल्क भर में बारिश और सैलाब से नुकसानात का जॉइंट सर्वे कराया जाएगा। बलूचिस्तान का सर्वे शुरू कर दिया गया है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी क्लाइमेट ट्रेजेडी है जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। 14 क्रिटिकल हाईवेज डिसरप्ट हुई थी, कट ऑफ हुई थी और उन 14 में से 11 को बहाल कर दिया है। इस वक्त सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट हाईवेज हैं जो ब्लॉक हैं, उन पे दिन रात काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में वो भी बहाल हो जाएंगी। पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आई उन्हें भी तेजी के साथ रिकवर किया जा रहा है। वफाकी सतह के ऊपर पूरा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हाई पावर्ड फेडरल लेवल की रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई। इसके बाद फौरी तौर के ऊपर हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और पाकिस्तान आर्मी की खिदमात अंडर आर्टिकल 245 हासिल की गई। वफाकी हुकूमत ने जो हमारा मौजूदा कंपनसेशन पैकेज है उसमें बतदरीज बड़ा इजाफा किया। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान आर्मी एविएशन एयरफोर्स नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने हजारों अफराद को रेस्क्यू किया। मुल्क भर में रिलीफ कैंप्स बनाकर लाखों को इमदाद दी गई है। 7,70,000 के करीब अद्वियात मुहैया की गई। मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब मुअख्खर कर दी गई है। अफवाज पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में पिछले 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है। अफवाज पाकिस्तान का हर एक सिपाही और ऑफिसर इसे ड्यूटी की बजाय एक मुकद्दस फरीज़ा समझकर सर अंजाम दे रहा है। आर्मी चीफ ने खुसूसी हिदायत दी और इन हिदायत के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी एविएशन की अब तक 276 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट की गई। कुमराट और कालाम में जो लोग सैलाब की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे फंस चुके थे उनसे फौरी रब्ता करके उन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पर महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा चुका है। इस वक्त मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम हैं और इनमें 50,000 से जायद मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया है, जबकि 250 मेडिकल कैंप्स जिसमें आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ अब तक 83,000 से जायद मरीजों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया कर चुके हैं।
खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अजला में कल से तेज बारिशों का इम्कान है। PDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। मलाकंड और हजारा डिवीजन, मर्दान, पिशावर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में कल से 7 सितंबर तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफा होगा। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। PDMA ने सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने मुतालिका इदारों को पेश की इक़दाम उठाने की हिदायत जारी की है। अंदरून सिंध सैलाब मुतासरीन की कराची आमद का सिलसिला भी जारी है। सिंध हुकूमत मुतासरीन की रिहाइश के लिए अभी तक कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर सकी। सरकारी स्कूल्स में मुतासरीन की रिहाइश की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। कराची से शफकत अजीज। खुदा जो मदद अंदरून सिंध सैलाब के मुतासरीन की बड़ी तादाद कराची पहुँच गई। सूबाई हुकूमत मुतासरीन की रिहाइश और खाने पीने का अभी तक कोई मुनासिब इंतजाम न कर सकी। सच्चल गोट के सरकारी स्कूलों में मुतासरीन की रिहाइश की गुंजाइश खत्म हो गई। कई मुतासरीन अपना साजो सामान लेकर कराची पहुँचे, लेकिन अभी तक उनके कयाम का बंदोबस्त नहीं हो सका। मेरे को 10 दिन हो गए इधर भाई। हम इधर हमारी एंट्री हो गई ना, हमारे पड़ोसी आए सुबह से, वो सुबह से बाहर बैठे हुए, मेहरबानी करके उसको अंदर भेजो। ये कह रहे थे तो मेरी अभी गुंजाइश पूरी हो गई और आदमी को और गुंजाइश नहीं होगी। मकामी रज़ाकार मुतासरीन की रिहाइश का इंतजाम कर रहे हैं। 1500 की फिगर हमारे पास हो गई थी कि 1500 हमने वहाँ पे लोग स्टे करवाए, जिनका खाना पीना है, रिहाइश है, बाकी ज़रूरियात है, वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं। जितने ज़्यादा स्कूल हमें मिलेंगे हम उतने ज़्यादा लोगों को वहाँ पे स्टे करवाएंगे। सच्चल गोट के 5 सरकारी स्कूलों में 7000 से ज्यादा मुतासरीन को रखा गया है। मजीद आने वाले मुतासरीन के लिए रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबे में बारिशों और सैलाब की वजह से 44 लाख एकड़ रकबे पर हमारी खड़ी फसलें तबाह हुई। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को बचाना अव्वलीन तरजीह है। जिन इलाकों पर इमदादी सामान नहीं पहुंचा वहां भी जल्द पहुंचाया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ ही देर पहले, और उनकी जानिब से कहा गया था कि सूबे में बारिशों और सैलाब की वजह से 44 लाख एकड़ रकबे पर हमारी खड़ी फसलें तबाह हुई और वहां पर इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है। निकासी आब का निज़ाम भी चल रहा है और ये भी कहा गया कि मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जिन इलाकों पर इमदादी सामान नहीं पहुँचाया गया वहाँ भी जल्द पहुँचाया जाएगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का रिमांड दिया जाएगा या नहीं, कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने महफूज फैसला कर दिया है। 7 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। हलीम आदिल शेख सरकारी ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा है और इस मुकदमे में वो गिरफ्तार हैं। मज़ीद मालूमात क्या हैं जुनैद शाह से हम जानेंगे। जुनैद बताएगा, हलीम आदिल शेख की जानिब से कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी की गई थी, क्या कहा गया था उनकी जानिब से? देखिए, सेशन कोर्ट मलीर में हलीम आदिल शेख के खिलाफ जमीन पर अराजी के कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत की गई थी। इंक्रूजमेंट पुलिस की जानिब से हलीम आदिल शेख को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर लेने की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसपे वकला के दलाइल दिए गए थे। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला 7 सितंबर तक महफूज कर लिया है। जबकि समाअत से कबल जब हलीम आदिल शेख को जेल से पेश किया गया तो कारकुनान की भी बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। जबकि इस दौरान कायद हज़ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 10 झूठे केसेस और बनाने इमरान खान का सिपाही हूँ, सिपाही ही रहूँगा। जबकि हलीम आदिल शेख का ये भी कहना था कि सिंध में माफिया के खिलाफ मुहिम चला रहा हूँ, जिस बुनियाद पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि जब भी अवाम के हुकूक की बात करता हूँ झूठा केस बना दिया जाता है। एक केस में जमानत होती है तो दूसरे एक और नए केस में सिंध हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी डाल दी जाती है। ये सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भी कहना था कि PTI पूरी तंजीम सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। जी शुक्रिया आपका जुनैद शाह। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की गई थी हलीम आदिल शेख की जानिब से। उन्होंने यही कहा कि वो इमरान खान के सिपाही हैं, डटे रहेंगे, किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम सब कप्तान के खिलाड़ी हैं, हम उसकी टीम के मेंबर हैं, हम इस इनकलाब के
लश्कर के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह ये जो समझते हैं कि हमें डरा लेंगे, दबा लेंगे, ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरा बेटा भी है, आप सब मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। आज माशाल्लाह वकला सारे मौजूद हैं, सारे साथी हमारे मौजूद हैं। हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। सिंध में सैलाब की वजह से कपास की फसल मुतासिर हुई। 1 सितंबर तक सिंध और पंजाब से कपास की पैदावार में 14% कमी हुई है। अब तक कपास की 15,39,000 बेल्स की पैदावार हासिल हुई। गुज़श्ता साल 17,91,000 बेल्स मार्केट तक पहुंची थीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 1 सितंबर तक 13,24,000 बेल्स खरीदी। पंजाब से कपास की पैदावार 29% तक बढ़कर 7 लाख बेल्स से तजावुज़ हो चुकी है। सिंध से रुई की पैदावार 33% कम होकर 8,35,000 बेल्स रह गई है। पाकिस्तान में महंगाई रोज एक नई तारीख रकम कर रही है। शहरी फलों, सब्जियों, दालों और अजनास की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। लोगों ने कहा है कि अब ना दालें, ना सब्जियां और ना ही फल खरीदने की सकत है। हुकूमत मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी कीमत आवाम को अदा करना पड़ रही है। शहरियों ने मजीद कहा कि अब तक बाजार जाते हुए भी डर लगता है। मैंने तबाही पाकिस्तान में ऐसी नहीं देखी जो अब है। लोगों के बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, कफन नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। 10 तारीख के बाद तनख्वाहें खत्म। गरीब बंदे की कमर तोड़ के रख दी है। एक गरीब बंदा अगर सालन पकाता है एक टाइम का, किस तरह से वो मैनेज कर रहा है? बहुत मुश्किल हो गई है सैलाब की वजह से, और मुर्गी भी बहुत महंगी हो चुकी है, दालें भी बहुत महंगी है। हद तक महंगाई ज़्यादा हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। टमाटर 300 रुपए किलो, महंगाई डबल तिबल हो गई है। कोई कंट्रोल नहीं है। देख लो टमाटर का रेट देख लो, तो प्याज का रेट देख लो। अवाम को की रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं। 50 किलो बोरी मिलता है 12,000 का, मैं किस तरह भेजूंगा? महंगाई बहुत हो गई है, इतने महंगा सामान है, गरीब आदमी के लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रुझान पहुंच चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा भी लिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमती इक़दामात भी देखे जाएंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से। और जैसे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने गुज़श्ता जलसे में ये ऐलान भी किया गया था कि अब मैं सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करूंगा, वहां पर जलसे करूंगा और वहां पर मौजूद आवाम से वहां के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया जाएगा। और उसी तनासुर में इमरान खान अब रुझान पहुंचे हैं जो कि सैलाब से मुतासरा इलाका है, और चेयरमैन पीटीआई सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे, वहां के मसाइल भी पूछे जाएंगे।